All right, let's go live across to Parliament, where the External Affairs Minister is speaking in the Rajya Sabha. Meanwhile, Parliament also, Lok Sabha also is seeing business being transacted. What is the efforts taken by the outside to solve the Tamil Nadu fishermen? Often Sri Lankan Navy is arresting and harassing them. And also, to protect the Sri Lankan Tamils, the constitutional amendment is still pending. Whether the government, the Indian government, our people were visited to take care of that, solve this problem. I want to know through you, sir. Honorable Minister. Sir, the House would be aware that a lot of the fishermen's issues arise from agreements and understandings which were reached in the 1970s. Insofar as the constitutional issue is concerned, the rights of the Tamil-speaking people in Sri Lanka, this was a matter of an agreement which we had between the two countries in 1987. Our endeavor today is to see that our fishermen are allowed to fish, do their occupation in the area of our jurisdiction in a peaceful manner, and wherever there are any frictions, to resolve that friction, because often, sir, boats are seized and fishermen are detained. So we make sure that these detentions are not long, and if there is any misunderstanding, to solve it. Insofar as the constitutional issue is concerned, sir, we have been continuously supportive of the implementation of the 13th Amendment of the Constitution and efforts by the Sri Lankan government to ensure that their own Tamil-speaking citizens live a life of dignity and of fairness. I'll be open to a discussion about role of Indian diaspora if there would be a suggestion. We'll structure it. Question number 47, Shri Sandeep Kumar Pathak. Honorable Minister. I had a second supplementary. First supplementary, Shri Sandeep Kumar Pathak. Reserve the question, yes, It will function. Both the Honorable Minister and the member are techno-savvy. Thank you, They sir. know sometimes situations. थैंक यू सर. Go ahead. सर जैसा आप देखते हैं कि जब भी पॉल्यूशन की बात आती है, पराली जलाने की बात आती है और किसानों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, मेरा ये मानना है कि देश में कोई भी किसान पराली खुद से नहीं जलाना चाहता है. जब वो पराली जलाता है तो सबसे पहले नुकसान तो उसको स्वयं को और उसको परिवार को होता है. तो इस इशू को एड्रेस करने की जिम्मेदारी सभी सरकारों की होती है. मेरा प्रश्न ये है सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, कि पराली को ना जलाने के लिए जो कॉम्पनसेशन देनी बहुत ज़रूरी है, यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप रोक सकते हैं. पंजाब सरकार ने ये ऑफर दिया है कि प्रति एकड़ पराली न जलाने के लिए 1000 रुपए कॉम्पनसेशन पंजाब सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार से मांगा है कि 1500 रुपए अगर केंद्र सरकार भी उस पर ऐड ऑन कर दे तो ये पर्याप्त राशि होगी और ये एक बहुत अच्छा प्रयास होगा. तो क्या केंद्र सरकार इसके लिए रेडी है और उनका इस पे क्या प्रयास है? ये मेरा पहला प्रश्न. माननीय मंत्री जी. माननीय सभापति महोदय, पराली को जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को विशेष अनुदान दिया गया. इस विशेष अनुदान के अंतर्गत पराली को रोटिवेटर से लगाने के लिए मशीनें दी गई, पराली को रोकने के लिए अन्य कमर्शियल उपाय दिए गए. मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी पराली को जलाने में गिरावट हरियाणा और बाकी राज्यों में आई, उतनी संतोषजनक प्रगति पंजाब राज्य में नहीं आई. मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के दिए गए संसाधनों का जो पूरी तरीके से उपयोग करना था, अगर वो होता तो हम पंजाब में भी उतनी ही गिरावट देखते जितनी बाकी राज्यों में देखी है. सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री संदीप कुमार पाठक. Thank you, sir. So although the first answer is not satisfactory, but I would move on to my next question. Sir,
पराली को जलाने से रोकने के लिए अगर लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल आंसर खोजना है तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत फंडामेंटल और क्रिटिकल पैरामीटर है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि एक तो एमएसपी है, क्या किसान को पर्याप्त एमएसपी मिलती है, और अगर उस फसल पर एमएसपी मिलती है तो पैडी जो धान है उसके एमएसपी में कितना डिफरेंस है। पंजाब सरकार ने ये ऑफर दिया है केंद्र सरकार को कि जो एमएसपी में डिफरेंस है धान में और बाकी के फसलों में वो अपने पंजाब सरकार की तरफ से कॉम्पेंसेट करेंगे और एमएसपी देंगे। केंद्र सरकार क्या इसके लिए तैयार है और इसी सेशन से क्या केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए तैयार है? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा 2018 से ही स्कीम लागू की गई है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लगभग 2440 करोड़ रुपए का जो फंड है वो रिलीज किया गया है। उसके साथ ही साथ सीपीसीबी ने एक नई फाइनेंशियल स्कीम को भी लागू किया जिसमें वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया, जिसमें पैडी का पिलेट बना करके उसके कमर्शियल उपयोग को मान्यता दी गई। उसके अतिरिक्त भी सीपीसीबी के द्वारा अन्य फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके संबंध में दी गई। फिर इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसका जो थर्मल पावर में भी उपयोग करने के लिए पिलेट्स बनाने के लिए उपयोग किया गया। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी गई है उसमें पिछले 2 वर्षों की तुलना में हम काफ़ी पराली को जलाने में गिरावट को देख रहे हैं। मुझे लगता है इन सारे प्रयासों को अगर अच्छे तरीके से लागू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पंजाब में भी विशेष रूप से ये दुर्भाग्य का विषय रहा कि सबसे ज़्यादा जलाने की घटनाएं संगरूर में हुई जो स्वयं मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री जयराम रमेश। Sir, air pollution is now a serious problem across the country, not just in and around Delhi. I'd like to ask the Honourable Minister, the law for preventing and control of air pollution was passed in 1981. The National Ambient Air Quality Standards were set in 2009. I would like to ask the Honourable Minister, in view of the accumulating evidence on public health of air pollution, whether he will consider reviewing both the law passed in 81 and the ambient air quality standards that were set in 2009. Honorable Minister. देश में जो वायु का जो प्रदूषण है उसकी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा 19,711 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और जो मानक तय किए थे उन मानकों को डिफाइन करने के लिए देश में 131 शहरों को चिन्हित भी किया गया। इन शहरों को चिन्हित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम लगाई गई, विशेष रूप से PM 2.5, PM 10 में जो For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.